Good morning, everyone. How are you? I feel that you will all fine. And welcome to you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss a very important topic of the life processes, which is called as digestion. And here I am going to explain the process of digestion by making a flow chart, which is going to be very beneficial and useful for your term 1 examination, because as we know our pattern will be MCQ, but the questions are asked by the CBSEs on the basis of concept. So those students having good concept about the topic, they are able to solve या give the answers correctly. So please pay attention on this topic carefully. Here, flow chart of digestion. The first question is arises that what is digestion? So I am prepared a chart here which help to understand your concept. The process by which large, complex and insoluble food molecule is broken into small, simple and soluble form of food is called as digestion. वो प्रोसेस जिसमें लार्ज, कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को सिंपल, स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है या किया जाता है, इसी होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन. एंड दिस इज डन with the help of different types of digestive organs and glands with the help of many chemical enzymes या catalyst, which is able to digest the complex insoluble food into small, simple and soluble form. Because जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं वो बाइट माउथ में डालते हैं तो वो इतना स्मॉल और सॉल्युबल नहीं होता है कि डायरेक्ट हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट हो सके और उससे आपको एनर्जी मिल सके. सो एक ऐसी प्रोसेस हमारे बॉडी की जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर दे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस और स्टार्ट फर्स्ट इन द माउथ. और ये डाइजेशन की प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारे माउथ में, और विथ द हेल्प ऑफ माउथ आवर इनटेक ऑफ फूड is broken down into some semi-solid form, and teeth, tongue, salivary gland helps in this process, which is present in the mouth and neck. यहाँ देखें माउथ के अंदर यहाँ पर मेनली आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड. टीथ में आपके पास हम लोगों के पूरे लाइफ में, ह्यूमन बींग्स में, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर द डाइजेशन विच इज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स स्पेशली. सो द टीथ विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ in adults. In our lifespan, there is 2 times teeth arises, which is known as milk teeth and permanent teeth. Milk teeth is also known as temporary teeth. Here, 4 types of teeth is present: incisors, canines, premolars and molars. 2 सेट में ये incisors, canine, premolar और मोलर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आप जानते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स की डेफिनेट नंबर्स होते हैं, जिनका अगर मैं टीथ फार्मूला अगर लिखूं तो ये हो जाएगा. पहले तो हम यहाँ इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के लिए यही चीज़ नीचे होगा, ये अपर जॉ के लिए और ये लोअर जॉ का. इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसमें आप देखेंगे 2, 1, 2,
3, 2, 1, 2, 3 और इंटू 2, क्योंकि ये दो सेट में होते हैं, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका 32 आएगा. सो वी कैन से दैट इन अ ह्यूमन एडल्ट देयर इज 32 teeth are present, which is are of 4 types. Next part, which is tongue. The tongue is not only present for the taste of food, but it also helps in the mixing of the food and also pushes the food in food pipe, which is very helpful for the intake of the food. The taste buds are present on the taste. The taste buds which are present on our tongue helps in taste the food and also helps the mixing of food, which pushes the food into the food pipe. याद रखें, there is food pipe which is called as esophagus, and in esophagus or food pipe there is no digestion takes place. The next part, salivary gland, which is very important. For your findings, I will tell you further. Salivary gland releases saliva, and in this saliva, salivary amylase is present. The saliva is watery fluid and which contain an enzyme that is called as salivary amylase. This salivary amylase digests the starch and breaks into carbohydrate. Keep remember that starch is a cellulose या complex form of carbohydrate which is called as made up of cellulose. So the complete digestion of starch is not here completed. So it is firstly digested by the salivary amylase into the mouth. इससे भी क्वेश्चन बार बार CBSE पूछेगा. दूसरी बात जो मैं सैलिवरी ग्लैंड के लिए कह रहा था, उसमें आपको मैं बताऊं कि केवल और केवल एक ही सैलिवरी ग्लैंड नहीं, बल्कि देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, विच इज referred as the parotid gland, the submandibular gland and the sublingual gland. These 3 pairs of salivary glands releases saliva. सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा रिलीज़ करती हैं, जो जिसमें सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एंड दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. यहाँ तक हो गया. आगे अब जैसे ही फूड हमारे आसोफेगस या फूड पाइप में पहुँचता है, वहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है. तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है. इसका मेन काम ये है कि ये अभी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको ये फर्दर एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है, जिसके वजह से फूड नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दैट इज स्टमक में एंटर करने वाला है. सो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि देयर इज़ नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप विच इज़ कॉल्ड एज आसोफेगस. लेकिन एक काम होता है, एक मूवमेंट होता है जो आसोफेगस से होते हुए ही फूड को जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक में पहुंचाएगा. एंड यहाँ पर मैंने आपको नोट करके लिख दिया हुआ है, द स्पेशल नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड बाय विच इट पुशेस द फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके 4 ऑप्शंस दे सकते हैं. तो आपको ये याद होना चाहिए कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड बाय विच इट पुशेस द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके वजह से फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे एंटर करते चले जाते हैं जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक में. तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड पाइप जो हमारी है वो इस तरह से कुछ मिलकर बनी होती है. तो यहाँ पर फूड को ऐसे डायरेक्टली ले नहीं जाया जा सकता है. यहाँ पर फूड आएगा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा,
फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जे शेप्ड ऑर्गन होता है हमारा स्टमक, वहाँ पर फूड पहुँच जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, जब फूड स्टमक में पहुँच जाएगा, अब इसके बाद दूसरी एंजाइम्स। तो यहाँ पर कीप रिमाइंड that the first enzyme which is secreted by salivary gland, that is salivary amylase, and digest the starch but not completely digest the starch। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फर्स्टली डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो आप बताएंगे स्टार्च, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट, एंड इट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज। अगला पॉइंट स्टमक से रिलेटेड है। द फूड विच एंटर्स इनटू द स्टमक। स्टमक is J-shaped organs which receives the food from esophagus. Stomach is made up of many and numerous tubular walls. Tubular walls helps to release gastric juice. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रिक जूस, या व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस। The juice which is released by the tubular walls of stomach is called as gastric juice, and this gastric juice contains many enzymes and many other useful substances like the digestive enzymes, and in this digestive enzymes two main enzymes present, which is pepsin and renin। पेप्सिन एंड रेनिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, और स्टमक की ट्यूबुलर वॉल्स और जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करती हैं उनमें हो गया दूसरा सब्सटेंस HCl, और तीसरा हो गया म्यूकस। पहला एंजाइम आपको मिला था सैलिवरी एमाइलेज, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ था, और दूसरा एंजाइम अभी आके स्टमक में मिल रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में, जिसमें पेप्सिन और रेनिन आप देख सकते हैं। पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन्स को, और प्रोटीन को ब्रेक करेगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल में ये प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगी। याद रखें, यहाँ भी पूरी तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड रेनिन का भी आपको फंक्शन आगे बता दूंगा। दूसरा केमिकल सब्सटेंस है HCl। HCl is very concentrated and makes the medium of food acidic. Makes the medium of food acidic, due to which pepsin can work properly. पहले तो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन रिलीज हुआ, लेकिन जैसे ही फूड स्टमक में गया वहाँ पर फूड को मिल गया HCl, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड था। HCl फूड के मीडियम को एसिडिक बना देगा, और क्यों बनाएगा, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम आसानी से प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर सके। इसीलिए लिखा है HCl मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, ड्यू टू विच पेप्सिन कैन वर्क प्रॉपरली, एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस HCl is to killing the bacteria which is present or can enter the stomach with food। दूसरा काम है HCl का कि ये एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, चाहे पहले से और चाहे फूड लेते समय अगर फूड में कोई बैक्टीरिया बैठ गए हों, पहुंच गए हों, कोई जर्म्स पहुंच गया हो, तो इन जर्म्स और बैक्टीरिया को HCl का कंसंट्रेटेड या एसिडिक नेचर किल कर देता है, जिसके वजह से फूड में जितने भी बैक्टीरिया या जर्म्स होंगे वहाँ किल हो जाएं, ताकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कोई भी नुकसान न पहुँचाएं। तो दो काम हो गया HCl का, एक तो फूड के मीडियम को एसिडिक बनाना और दूसरा बैक्टीरियाज को किल करना। थर्ड सब्सटेंस विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज म्यूकस। म्यूकस इज अ polythene like structure या a substance which protects the wall of stomach to get damaged and dissolved।
आपको जान के ये हैरानी होगी, HCl is so concentrated because and that's why it can dissolve the stones and bones also. Therefore you can ask a question, that is why the walls of stomachs is not dissolved by the HCl. So here the important things is mucus, which is protect the walls of stomachs. ये पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक्स की वॉल को चारों तरफ से घेर लेता है और उन पर चिपका रहता है, जिसके वजह से HCl का अटैक जो है वो हमारी स्टमक्स और स्टमक वॉल पर नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी आपने अल्सर का नाम सुना हुआ होगा, या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अल्सर या पेट में छाले हो जाते हैं, उनका कारण यही है, यही HCl कभी कभी उनकी वॉल को ब्रेक कर देता है और तभी ये छाले बन जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए क्लास 9th में आप पढ़े होंगे वाई डू वी फॉल इल। उसमें आपको जहाँ भी पढ़ाया गया होगा आप जानते होंगे एमॉक्सिलिन 500 एक दवा है जिसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने से नहीं, विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर prescription. Okay, next one is, so the mucus protects the wall of stomach to get damaged and dissolve. HCl makes the medium of food acidic and kills the bacteria, and digestive enzyme like pepsin and renin helps to break down the proteins into small molecules. इस तरह से यहाँ तक स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। सो द नेक्स्ट स्टेप विच टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड आफ्टर द पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का फंक्शन फिनिश होने के बाद द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच रिलीजेस इंटेस्टाइनल जूस। ये intestinal juice contain a number of enzymes which can able to complete the digestion of every component of our food, which is carbohydrate is finally converted into the simplest form, that is glucose. Protein which is also a complex form जो थी वो चेंज हो चुकी है एमिनो एसिड्स में, एंड फैट इज फाइनली ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आपने फूड को माउथ में लिया था तो हमारे फूड में कंपोनेंट प्रेजेंट था स्टार्च, हमारे फूड में प्रेजेंट था प्रोटीन, हमारे फूड में प्रेजेंट था फैट। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आने के बाद कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो चुका है ग्लूकोज में, प्रोटीन ब्रेक हो चुकी हैं एमिनो एसिड्स में, और फैट ब्रेक हो चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सो वी कैन सी दैट द कॉम्प्लेक्स फूड is changed into small, simple, soluble forms, and in this way the food which is changed into the small and simple forms is going to be absorbed. अब ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। In this way we can say that in this way the process of digestion is completed. In this way the process of डाइजेशन कंप्लीटेड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कुछ लोग स्टमक बता देते हैं, लेकिन स्टमक में नहीं, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाके कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो पहला आपका स्टार्च ब्रेक होता है माउथ में, सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करती हैं। दूसरी बार स्टमक में आपने देखा, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ
कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। तीसरी बार आपने देखा लीवर और पैंक्रियाज हेल्प करते हैं बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करके। और लास्टली द ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन is able to break the component of food into the small and simplest form, which is finally the absorbed by the blood vessels of the small intestine। वो आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कोशिश किया है कि ये फ्लो चार्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, और इस फ्लो चार्ट से आप देखेंगे कि चाहे डाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, एंजाइम्स के बेसिस पर पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, तो आप एलिजिबल हैं उस क्वेश्चंस को सही करने के लिए। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं वो कम से कम इन वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जल्दी ही हम लोग 4th पार्ट अपलोड करेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट का है, लाइव प्रोसेस का लास्ट पार्ट होगा वो। और आप देखेंगे कि आप अगर वीडियो सारी मेरी देख लेते हैं तो आपको लगभग बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। थैंक्स।